Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone. In this video, we are going to solve problem number 12, 13 and 14 from the chapter Trial Balance, Intermediate First Year Accountancy subject. Now let us begin with the problem number 12. That is prepare trial balance of Suchitra as on 31/12/2015. Immediately after reading this, we will write our heading. The heading will be trial balance of Mrs. Suchitra as on, what is the date? 31/12/2015. The heading is done. Let us see the balances. आइडेंटिफाई करना है और डेबिट बैलेंस को डेबिट साइड लिखो, क्रेडिट बैलेंस को क्रेडिट साइड लिखो. सिंपल एंड इजी. कैश इन हैंड इज अवर एसेट. एसेट का डेबिट बैलेंस रहता है. विल राइट इट ऑन द डेबिट साइड. कैश द अमाउंट इज ₹4,000. देन आफ्टर दैट डेटार्स. डेटार्स हमारा एसेट है. एसेट का डेबिट बैलेंस रहता. विल राइट इट ऑन द डेबिट साइड. डेटार्स द अमाउंट इज ₹12,000. देन आफ्टर दैट ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक इज अवर एसेट. एसेट का डेबिट बैलेंस रहता. The amount is ₹8,000. and after that purchases is our expenditure. Expenditure का debit balance रहता. we'll write it on the debit side. Purchases the amount is 15,000. and after that buildings. Buildings is our asset. Asset का हमेशा debit balance रहता. we'll write it on the debit side. Buildings the amount is the amount is ₹36,000. then after that sales इज अवर इनकम. इनकम का क्रेडिट बैलेंस रहता है, इसीलिए हम इसको क्रेडिट साइड लिख रहे हैं ट्रायल बैलेंस में. सेल्स द अमाउंट इज ₹23,000. एंड आफ्टर दैट कैपिटल. कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, याद रखो कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता है. कैपिटल द अमाउंट इज ₹45,000. देन आफ्टर दैट बिल्स पेएबल इज अवर लाइबिलिटी. लाइबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहेगा. द अमाउंट इज ₹7,000. एवरीथिंग इज डन. नाउ वी नीड टू डू टोटल. अब हम इसका टोटल करेंगे. लेट अस सी 0 0 0 राइट. 4 + 2 6 6 + 8 14 14 + 5 14 + 6 20 25 हो गया. 2 5 2 3 4 5 6 7. तो 0 0 0 इधर आ गया. 25 2 5 5 आ गया 75 7. So after this the total is 75,000. let us see here 45 + 10 55 65 75,000. trial balance is agreed. Now let us move towards problem number 13. prepare trial balance of Radha from the following balances. Immediately after reading this, we'll go for our heading. MRS Mrs. Radha RADHA. अब डेट हमारा कुछ नहीं दिया तो आप लिखो भी ना को. एज इट इज एज ऑन डैश बोल के लिख डालो. सिंपल एंड ईजी. ओपनिंग स्टॉक ये हमारा एसेट है राइट. और एसेट का डेबिट बैलेंस रहता. ओपनिंग स्टॉक. देन आफ्टर दैट द अमाउंट इज 10,000. परचेजेस इज अवर एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर का डेबिट बैलेंस रहता. Purchases the amount is ₹27,000. and after that carriage is our expenditure. expenditure का डेबिट बैलेंस रहता. the amount is 2,500. then after that creditors ये हमारी लाइबिलिटी है. लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस रहता. creditors the amount is ₹10,000. and after that capital. capital का हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता. capital the amount is ₹15,000. and after that sales. sales is our income. income का credit balance रहता. we'll write it on the credit side. then after that the amount is 32,000. salaries is your expenditure. expenditure का हमेशा debit balance रहता. we'll write it on the debit side. the amount is ₹4,000. then after that debtors. debtors हमारा asset है ठीक है, जिसको हम उधार पे बेचे थे कस्टमर्स को. वो लोगों के पास से हमारे पैसे आना है. हमारा पैसा हमारा asset रहता. asset का हमेशा debit balance रहता. we'll write it on the debit side. debtors the amount is 8,000. and after that cash in bank मतलब इतने पैसे हमारे बैंक अकाउंट में है. तो किसके पैसे? हमारा पैसा हमारा एसेट रहता. सो कैश एट बैंक द अमाउंट इज ₹5,500. एवरीथिंग इज डन. नाउ वी नीड टू डू टोटल. ठीक है, जब हम इसका टोटल करेंगे लेट अस सी 0 0 0
5 + 5 10 हो जाता 1, 1 + 7 8 9 10 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2 7 2 3 4 5 5 57,000 is the total of debit side. Now let us see what will be the total of credit side. इसका टोटल कितना आएगा इधर? हाँ 7 इधर आ गया, 3 4 5 57,000 done. Trial balance is agreed. Now let us move towards our problem number 14, that is prepare trial balance of N Rao from the following balances. Immediately after reading this, we will write the heading of our trial balance, that will be trial balance of Mr. N Rao as on dash. अब इधर डैश क्यों मैं स्पेसिफाई करा बोले तो ये क्वेश्चन में डेट मेंशन नहीं है, तो आप भी नहीं लिखना, राइट. आफ्टर दैट विल आइडेंटिफाई द बैलेंसेस. कैश एट बैंक, दिस इज अवर एसेट, और एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस रहता. सो वी गोइंग टू राइट कैश एट बैंक. द अमाउंट इज 42,000. एंड आफ्टर दैट सैलरीज इज योर एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर का हमेशा डेबिट बैलेंस रहता है. विल राइट इट ऑन डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस. सैलरीज, द अमाउंट इज 30,000. एंड आफ्टर दैट सेल्स इज अवर इनकम. इनकम का हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता है. विल राइट इट ऑन द क्रेडिट साइड. सेल्स, द अमाउंट इज रुपीज 3,50,000. 3,50,000 इज द अमाउंट. एंड आफ्टर दैट प्लांट इज नथिंग बट पार्ट ऑफ आवर मशीनरी. ठीक है, हमारे मशीनरी के हिस्से को प्लांट बोलेंगे हम. एंड दिस इज अवर एसेट. एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस रहता है. विल राइट इट ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस प्लांट. एंड आफ्टर दैट द अमाउंट इज 40,000. बिल्स रिसीवेबल, मतलब बिल्स के ऊपर पैसे हमको आना है. ठीक है, तो वो हमारे पैसे हैं. हमारा पैसा हमारे लिए एसेट रहता, और एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस रहता. सो वी विल राइट इट ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस बिल्स रिसीवेबल. बिल्स receivable. The amount is 45,000. and after that fixed deposit is our asset. fixed deposit हमारा क्या है? एसेट है. एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस रहता. fixed deposit, the amount is rupees 60,000. purchases is our expenditure. expenditure का हमेशा डेबिट बैलेंस रहता. purchases, the amount is rupees 2,80,000. क्लोजिंग स्टॉक इज अवर एसेट. क्लोजिंग स्टॉक इज अवर एसेट, और एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस रहता. विल राइट इट ऑन द डेबिट साइड. क्लोजिंग स्टॉक, द अमाउंट इज रुपीज 30,000. बिल्स पेएबल, मतलब बिल्स के ऊपर आपको पैसे पे करना है. दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे. आपकी जिम्मेदारी है पे करना. सो दैट इज अवर लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता है. विल राइट इट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस. बिल्स पेएबल, द अमाउंट इज रुपीज 37,000. देन लास्ट आइटम इज कैपिटल. कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता है. विल राइट इट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस. कैपिटल, द अमाउंट इज 1,40,000. विल गो फॉर टोटल. अब क्रेडिट साइड देखेंगे. 3,50,000 है, 4,50,000, 4,90,000, 5,27,000. 5,27,000 विल बी द टोटल ऑफ क्रेडिट. अब डेबिट साइड का टोटल देखेंगे हम. 0,00. एंड आफ्टर दैट 2 + 5 दैट इज 7. 2 + 5 दैट इज 7. 4 + 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32. तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा. 32 3 4 5. सो 5,27,000 will be the total of debit. Trial balance is agreed. From this we have completed problem number 14. In the next video we are going to cover problem number 15, 16 and 17. Thank you and stay connected with Ranks, the Institute of Commerce.